Hey everyone, welcome back. I will not waste any time now. हम लोग जल्दी से सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. टोटल ऑफ 16 क्वेश्चंस होंगे. आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं. ओनली 10 आउट ऑफ 16 क्वेश्चंस you'll have to attempt, and each question is going to carry about 2 marks. So let's look at what the first question would be. So what is a pronoun? Give an example. Now आपने English I think first या second standard से start किया होगा. I will not get into the depth of this explanation. So pronouns वो words होते हैं जो nouns को replace कर दें. For example, अगर मेरा नाम आकाश है तो I can also say he, right? So the definition is words used in place of noun are called pronoun. An example, Kavita bought a book. She has a great book collection. So यहाँ पर कविता क्या है? कविता is the noun. She is the pronoun. So 1 mark for explanation and 1 mark for example. So question number 7 जो आपका है वो part A employability skills से है. Building self motivation. List 4 steps to build self motivation. So 4 steps आपको देने हैं. हर एक step जो होगा half of mark का होगा. There are a couple of strengths. You have to find out your strengths कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, कौन सी आपकी weakness है. According to your strengths you can set your goals. For example अगर आप maths में अच्छे हो तो मे बी आप engineering कर सकते हो. अगर आप English में अच्छे हो मे बी आप arts कर सकते हो या फिर literary sciences कर सकते हो. And to achieve that goal you have to plan it, right? आपको एक plan create करना पड़ेगा ताकि आप step by step अपने goal की तरफ बढ़ो. And always stay loyal to your goal. So these are the 4 steps to build self motivation. आप इसकी वजह से motivated रहोगे and धीरे धीरे जैसे ही आप अपने goals complete करोगे आप अपने aim की तरफ बढ़ते जाओगे. Question number 8 information loss और leakage के ऊपर है. A security break is a leakage of information stored in a computer. So एक computer एक hardware device है उसमें आप various kind of information store करते हो. कुछ हो सकता है personal information होगी, कुछ confidential information होगी जैसे credit card की details, bank details. Explain 2 ways in which personal information can be lost or get leaked. So couple of ways अगर आप ऑनलाइन किसी के साथ शेयर कर रहे हो या फिर किसी को अपने आपके पीसी का एक्सेस मिल जाए, अगर आपका अकाउंट का पासवर्ड मिल जाए तो वो सब रीजंस हो सकते हैं कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस्ट हो जाए या लीक हो जाए. आंसर कैसे लिखेंगे? 1 मार्क फॉर ईच पॉइंट. वी आर नॉट केयरफुल इन गिविंग आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट. फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक का पोस्ट डाल दिया और मे बी आपने यूट्यूब पे कुछ ऐसा कमेंट कर दिया जो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है. आपने अपना प्रॉब्ली यूजर नेम शेयर कर दिया या फिर अपना अकाउंट डिटेल शेयर कर दिया. एंड सेकेंडली क्या हो सकता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस. कोई हैकर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकते हैं अपने पीसी का या फिर उसको अगर आपका पिन मिल गया या फिर पासवर्ड मिल गया तो ही विल बी एबल टू एक्सेस ऑल योर डिटेल. सो दीज आर द 2 वेज योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन गेट लीक. सो ईच ऑफ द पॉइंट्स इज ऑफ 1 मार्क. क्वेश्चन नंबर 9 है फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टॉपिक के ऊपर. सो रीमा रन्स अ स्मॉल हैंडमेड सोप बिजनेस. एवरी मॉर्निंग शी डिसाइड्स व्हाट प्रोडक्ट टू मेक, हाउ मेनी सोप्स टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू सेल देम. शी ऑल्सो अरेंजेस रॉ मटेरियल्स and assigns tasks to her staff. From the paragraph, identify and write 2 functions of an entrepreneur that are being described. So क्या क्या हो रहा है? रीमा क्या कर रही है? She is deciding, she is making decisions. She is also arranging raw materials, so she is going to collect all the raw materials. So let's see how you can answer this question in your board examination. So 2 functions of an entrepreneur described in the paragraph are: first is making decisions and second is managing the business. Very simple, nothing complicated. 1 mark for each point. Let's move on to the next one. Organic farming के ऊपर ये क्वेश्चन आ रहा है. सेक्शन ए आपका जो आता है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट. व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? मेंशन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग. नाउ दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. सो डेफिनेशन डायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक से है, विच मीन्स दैट फार्मर्स डू नॉट यूज केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स. कंप्लीटली ऑर्गेनिक चीजें यूज करते हैं जिससे कोई भी केमिकल नहीं जाता है ग्राउंड के अंदर. बेनिफिट्स क्या है? इट हेल्प्स इन ग्रोइंग बेटर क्वालिटी केमिकल फ्री क्रॉप्स. यहाँ पर जो केमिकल फ्री है दैट इज इंपॉर्टेंट. इट मेंटेन्स द सॉइल क्वालिटी फॉर फ्यूचर यूज. सो क्या होता है जब भी आप केमिकल पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हो तो एक सीजन में आपका जो प्रोड्यूस है बहुत सारा आएगा, बट जो नेक्स्ट सीजन आने वाला है यहाँ पर सॉइल को ज्यादा टाइम चाहिए होगा रीजनरेट करने के लिए. सो दीज 2 पॉइंट्स आर फॉर 1 मार्क ईच. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. आउट ऑफ द 6 गिवन क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एनी 4 एंड 20-30 वर्ड्स ईच. सो क्या होता है, जैसे ही आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आप सेक्शन बी में पहुंच रहे हो तो आप वहां पर डेफिनेशन लिख सकते हो. डेफिनेशन इज फॉर ऑलमोस्ट 15 वर्ड्स एंड देन आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो या फिर एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हो जो अगेन 10 to 15 वर्ड्स होगा जिसमें आपके 20 to 30 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर 11 है AI प्रोजेक्ट साइकिल स्टेजेस के ऊपर. व्हाट डू यू डू इन द सेकंड एंड थर्ड स्टेजेस ऑफ एन AI प्रोजेक्ट साइकिल फॉर 2 मार्क्स. प्रॉब्लम स्कोपिंग इज द फर्स्ट स्टेप फॉर AI प्रोजेक्ट साइकिल. देन वी हैव डेटा कलेक्शन, देन वी हैव डेटा एनालिसिस, देन वी हैव मॉडलिंग, देन वी हैव इवैल्यूएशन. सो सेकंड और थर्ड स्टेप क्या है? डेटा से रिलेटेड है. सो डेटा एक्विजिशन एंड डेटा एक्सप्लोरेशन. यहाँ पर आप वेरियस वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो कि डेटा एक्विजिशन क्या होता है. दैट यू नीड टू एक्वायर डेटा सो दैट जितने भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं उससे रिलेटेड जो सारी चीजें एक जगह पे आ जाए ताकि आप ये समझ पाओ कि सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं.
And third stage is once you collect all that data, you have to visually represent it, maybe in the form of graphs or flowcharts or map. क्योंकि ये डेटा बहुत ज्यादा होता है क्वांटिटी में, विजुअलाइज करके ह्यूमंस को पता चल सकता है कि ओके दिस इज वन ऑफ द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम. सो मार्किंग स्कीम क्या है? 1 मार्क फॉर ईच एक्सप्लेनेशन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. डीप लर्निंग मॉडल आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डीप लर्निंग मॉडल. सो ए में क्या है? दिस डीप लर्निंग मॉडल प्रोसेसेस इनपुट इमेजेस. जहां पर भी आपने इमेजेस देखा, कोई भी डीप लर्निंग मॉडल या एआई मॉडल यूज हो रहा है, डायरेक्टली आपको समझना है कि क्या है ये. दिस इज कंप्यूटर विजन टू असाइन इंपॉर्टेंस टू वेरियस फीचर्स इन द इमेज, allowing it to distinguish one object from another. So this is also the concept of object classification. Computer vision chapter में हम लोगों ने ये पढ़ा है. So first तो computer vision हो गया. Second देखते हैं. This deep learning model is inspired by the structure of the human brain. It can automatically extract features from large data set without explicit programming. So यहाँ पर neural networks की बात हो रही है. So actually neural networks क्या है? It looks something like the brain. Brain के अंदर cells होते हैं. Cells which are also called neurons. So ये बहुत थोड़े-थोड़े cells होते हैं जो एक दूसरे के साथ बात करते रहते हैं. सो यही सेम स्ट्रक्चर अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो अ डीप लर्निंग मॉडल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट यू प्रोवाइड डेटा फॉर. सो दिस इज द आंसर, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स. ओके, कंप्यूटर विजन की बात हो रही थी तो हमें डीप लर्निंग मॉडल चूज करना था. सो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यूज होता है कंप्यूटर विजन के अंदर, वेयर एज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज होता है डीप लर्निंग मॉडल्स के अंदर. आपको ये दोनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी. क्वेश्चन नंबर 13, रीइंफोर्समेंट लर्निंग वर्सेस सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. हाउ इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग डिफरेंट फ्रॉम सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? सो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम लोग बहुत सारा डेटा देते हैं मॉडल को, एंड देन मॉडल परफॉर्म, एंड देन वी ट्राई टू इवैल्यूएट द मॉडल कि ओके मॉडल की एक्यूरेसी इतनी आई थी. वेयरएज रीइंफोर्समेंट मॉडल में थोड़ी चीजें डिफरेंट है. मॉडल पहले रॉन्ग स्टेप लेता है, देन इट ट्राइज टू लर्न फ्रॉम इट, देन अगेन इट गोज टू द नेक्स्ट स्टेप एंड देन इट चेक्स इज इट राइट और इज इट रॉन्ग. और अगर रॉन्ग हुआ तो अगेन इट विल लर्न फ्रॉम इट, अगर राइट हुआ तो इट विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप. सो दिस इज अ साइकिल फॉर रीइंफोर्समेंट लर्निंग. इसका डेफिनेशन देखते हैं. की डिफरेंसेस क्या है? ट्रेडिशनल लर्निंग लिमिटेशन. सो सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको अच्छी तरह से आइडिया होना चाहिए कि आपका डेटा क्या है. इज इट टेक्स्ट डेटा, इज इट विजुअल डेटा और इज इट ऑडियो डेटा. वेयरएज आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ये नहीं करना है. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्पेसेस, जब भी आपकी प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इसमें ऑब्वियसली कंप्यूटर विजन यूज होता है, मशीन लर्निंग यूज होता है. बट अगर आपको साइमुलेट करना है, अगर आपको कॉपी करना है कि एक कार एक सिटी के अंदर कैसे चलेगी, अगर गलतियां कर रही है तो गलती से कैसे बचना है, वो सब चीजें रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आ जाती हैं. अनफोर्सीन एनवायरमेंट्स, अगेन सो अनफोर्सीन एनवायरमेंट्स का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि आप मॉडल को वो डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहे हो. मॉडल खुद से ही सीख रहा है धीरे धीरे कोई भी अनफोर्सीन एनवायरमेंट, एंड इट्स एन अडेप्टिव सिस्टम. जैसे मैंने आपको बताया था, एक रॉन्ग मूव अगर मॉडल ने किया तो इट विल स्टार्ट टू लर्न फ्रॉम इट. सो इट इज एन अडेप्टिव सिस्टम, इट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट सिस्टम. सो ईच ऑफ द पॉइंट्स विल बी ऑफ हाफ मार्क. क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. मॉडल इवैल्यूएशन इन मशीन लर्निंग. व्हाट इज मॉडल इवैल्यूएशन इन मशीन लर्निंग एंड हाउ डज इट हेल्प टू improve an AI model? So let's see what the answer is to this. So definition देनी पड़ेगी आपको and how it improves an AI model. So there are various evaluation metrics. अगर आपने देखा होगा, हम लोग ने accuracy देखा था, we looked at precision, we looked at recall. So ये various metrics होते हैं जिससे आप measure कर सकते हो कि एक मॉडल रियल लाइफ में कितना अच्छा रहेगा, कितना उसका यूजफुलनेस रहेगा. So it is the process of using different evaluation metrics to understand machine learning models performance, जिससे हमें मॉडल की स्ट्रेंथ पता चलती है, वीकनेस पता चलता है एंड सुटेबिलिटी पता चलता है फॉर द टास्क एट हैंड इन रियल लाइफ. एंड हाउ डज इट हेल्प टू इंप्रूव एआई मॉडल्स? फॉर एग्जाम्पल एक मॉडल का जो मेट्रिक है एक्यूरेसी का, वो 89% आया, एंड देन यू कैन सी वो मॉडल कहाँ पर गलत था. फिर आपने उसको न्यू डेटा फीड किया, उसको रीट्रेन किया, सो उसकी एक्यूरेसी बढ़ गई 95%. सो दिस इज हाउ एआई मॉडल्स कैन बी इंप्रूव्ड यूजिंग मॉडल इवैल्यूएशन विद कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. यू आर एक्चुअली गिविंग द फीडबैक टू द मॉडल. You get feedback from the metrics, make improvement, and continue this process until a desirable accuracy is achieved. Obviously, around 99% accuracy is a very good accuracy, जो real life scenarios में काफी beneficial हो सकती है. So each of these definitions and technical explanation will carry 1 mark. So question number 15 is from byte image format. What is byte image format in context of digital images? अगर आपको याद है, हम लोगों ने computer vision में पढ़ा था कि कोई भी image या फिर कोई भी screen एक pixel से create होती है, and each pixel is actually nothing but a नंबर. नाउ इस नंबर को हम लोग 1 2 3 4 भी लिख सकते थे, बट वी डोंट. वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ones and zeros. Why? Because computers can only understand binary language. So ये जो 8-bit integer है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिजिट को, फॉर एग्जाम्पल 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स में हम लोग लिख सकते हैं, जहां पर each digit can only be ones or zero. So this is also known as 8-bit integer. So typically 0 is taken as color black and 255 is taken as color white. 0 to 255 हम लोग बोलते हैं
कलर है 0 मीन्स ब्लैक एंड 255 मीन्स कि आपका जो कलर है कंप्लीट कलर है वाइट है, बट हम लोग डायरेक्टली ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं, जो कंप्यूटर देखता है दिस विल ओनली बी इन टर्म्स ऑफ बाइनरी विच इज 8-bit इंटीजर। एंड टेक्निकल एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर सब दी हुई है, एंड ईच एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन प्लस एक्सप्लेनेशन विल कैरी 1 mark ईच। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द सब्जेक्टिव पार्ट, इसके बाद हम लोग थोड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे इन द नेक्स्ट सेशन, बट फॉर दिस NLP स्टेज आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन, आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ NLP एंड एक्सप्लेन वी आर टू द zoo going tomorrow, we are going to the zoo tomorrow। ऑब्वियसली गलत होना चाहिए था, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। सो यहाँ पर क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ग्रामर है दैट इज रॉन्ग। सो ये कौन सा स्टेप आता है NLP के अंदर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर? ग्रामर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड रूल, एंड रूल का एक और फॉर्म होता है जो आप लिख सकते हो विच इज कॉल्ड सिंटैक्स। सो दिस इज द सिंटैक्टिक प्रोसेस। सो द स्टेज इज सिंटैक्टिक एनालिसिस और ऑल्सो कॉल्ड पार्सिंग। एक्सप्लेनेशन के अगेन 1 mark होगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द ग्रामर ऑफ sentences and phrases. It forms a relationship among words and eliminates logically incorrect sentences. So यहाँ पर अगर आप देखोगे we are to the zoo going tomorrow, this is logically incorrect and grammatically incorrect, whereas this one is correct, it has the correct grammatical structure. So these were the questions for your section B part, जहाँ पर हम लोग 2 marks के question solve करेंगे. The next type of questions will be of 4 marks.